The class that we had about hypothesis, we were talking about null and alternative hypothesis. हम लोग null और alternative hypothesis के बारे में बात कर रहे थे. That whenever we go about framing a hypothesis, what we do, we start with research problem, and then we start framing the research question, and this entire process takes about a lot of time where we do brainstorming, a lot of time where we do review of the literature that is available, review of the previous research work that has been done by other researchers that is available. So we review that work, we do brainstorming, and we might discuss it with people, those who are expert in that kind of research area. And then we try to properly understand what this research problem is, and then we frame a question, answer to which will be our research result. हम एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, और कई बार एक क्वेश्चन नहीं, कई बार कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे फ्रेम करते हैं जिनके जवाब में हमें अपने रिसर्च का रिजल्ट जो है वो मिलेगा. जब हम अपना रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो वो हमारे को हाइपोथेसिस फ्रेम करने में हेल्प करता है. बेसिकली व्हाट वी डू, वी formulate the hypothesis on the basis of research question we have. For example, the research question we have is, do we have some, जो हम लोग लास्ट एग्जाम्पल ले रहे थे वही कंटिन्यू करते हैं, do we have some kind of connection between the editorials that are written by newspapers and the kind of political standing they have in a country or in a region. और ये हमारा क्वेश्चन हो सकता है. हाइपोथेसिस हम क्या फ्रेम कर सकते हैं? हाइपोथेसिस हम फ्रेम कर सकते हैं that there is statistical, you could say statistical significant relationship between the editorial written by a newspaper and its political standing. Now, when we are framing hypothesis, in my last class, I have explained that we always frame a null hypothesis for the main hypothesis that we have in our mind. हमारे दिमाग में जो भी hypothesis होती है, उसके लिए हम एक null hypothesis भी तैयार करते हैं. So what we do, we have one hypothesis which is the you could say the expectation of a researcher. हमारे दिमाग में एक hypothesis होती है जो researcher की expectation के हिसाब से होती है, और एक हम उससे बिल्कुल opposite बनाते हैं. And we have already discussed कि हम opposite क्यों बनाते हैं. We make or we formulate one opposite hypothesis because we want to totally be sure that there is no other conclusion, no other result, no other point other than what we are expecting. हम जो expect कर रहे हैं अपने research में, उसके अलावा कोई भी तरह का result, कोई भी तरह की conclusion, कोई भी तरह की explanation जो है वो मौजूद नहीं है. इस चीज को cancel out करने के लिए, इस चीज को nullify करने के लिए हम एक opposite hypothesis को formulate करते हैं. So this expected hypothesis is known as alternative hypothesis, और उसको हम H small a ऐसे भी लिखते हैं. This is the symbol of alternative hypothesis. और जो opposite hypothesis है जिसको हम null hypothesis बोलते हैं, उसको हम H और 0 ऐसे भी लिखते हैं. और सेम वे आप इसको H1 भी लिख सकते हो और इसको HN भी लिख सकते हैं. ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं HA और H0. ये रेयर यूज होते हैं, नॉट मच इन यूज. So this is how you symbolize your alternative and null hypothesis. This is alternative hypothesis, this is null hypothesis. Now the point comes कि आप जब ये दोनों हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो एक रिसर्च के लिए आप इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं. उसके लिए हमें और तरह की हाइपोथेसिस को भी समझने की ज़रूरत है. एंड वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू सिम्बल्स. सबसे पहले जब हम रिसर्च में हाइपोथेसिस की बात कर रहे होते हैं तो द मोस्ट commonly used statistical tool is mean. सबसे you could say general, common, most oftenly used, most commonly used जो statistical tool है वो है mean.
मीन जो है उसको आप अगर सैंपल मीन है तो ऐसे लिखते हो, अगर पॉपुलेशन मीन है तो ऐसे लिखते हो। ओके, सो दिस इज पॉपुलेशन मीन सिंबल, दिस इज सैंपल मीन सिंबल। अब आप यहां देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब है कि सैंपल ऑफ वन ग्रुप इज नॉट इक्वल टू सैंपल ऑफ अनदर ग्रुप। ओके, इसको हम दूसरी तरफ से कैसे लिख सकते हैं, अपोजिट। null hypothesis says sample of not sample, mean of one group is equal to mean of another group। मैं रिपीट करती हूँ, मैंने सैंपल वर्ड यूज कर दिया था यहाँ पर, सॉरी। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकती है mean of one group is not equal, ये कैंसिल करने का मतलब होता है not equal to mean of another group। null hypothesis will be mean of one group is equal to mean of another group। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको लिखने का, that is here alternative hypothesis could be mean of one group minus mean of another group is not equal to 0, or null hypothesis could be mean of one group minus mean of another group is equal to 0। ये बहुत ही सिंपल तरीका है हाइपोथेसिस को डिफाइन करने का। एक बार मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये हाइपोथेसिस नल और ऑल्टरनेटिव किस तरीके से फ्रेम होती है। लेट्स जस्ट गेट बैक टू अनदर टॉपिक, कोई और टॉपिक या कोई और रिसर्च एरिया यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर लेते हैं। लेट्स जस्ट से दैट you are doing a research and you want to know is there any impact of the you could say of the fake messages or of the tweeters that are spread out by celebs regarding certain things. Do they have some kind of impact on common people or not? So this is something you want to research about. So what you did some brainstorming, you did some literature review, you read about what is the what is the idea of audience in terms of social media, what do you mean by social media, what kind of social media platform is Twitter, how it works, what kind of working it has, and then after reading, you decided that you would like to take one or two case studies where celebs have written something, they have tweeted something, and after that controversies have started. So you might take into account maybe Kangna Ranaut, you might take into account Anurag Kashyap, you might take into account some other maybe Dhoni or maybe Irfan Pathan or Sunil Gavaskar, could be anybody। अब आपने दो केस स्टडी ले ली जिन पे आप काम करना चाहते हैं। सो व्हाट यू हैव डन नाउ आफ्टर डूइंग अ प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपने अपना रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो डिफाइन कर दी है। योर रिसर्च प्रॉब्लम इज यू वुड लाइक टू नो द इम्पैक्ट ऑफ ट्वीट्स मेड बाय सेलेब्स ऑन कॉमन मासेस। और इसको आपने क्वेश्चन में अपना फ्रेम कैसे करा है, फर्स्ट इज यू विल सी द इम्पैक्ट ऑफ tweet made by this particular celeb on common masses, then another, और आपने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया। अब आपको अपनी हाइपोथेसिस बनानी है। हाइपोथेसिस बनाने के लिए आपको एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी और एक नल हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि इम्पैक्ट पड़ता है तो आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी, देयर इज स्टैटिस्टिकल वर्ड में क्यों यूज कर रही हूँ, बिकॉज स्टैटिस्टिकल वर्ड बोलने से हम ये बात करते हैं कि हम उसे स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करके और प्रूव भी कर सकते हैं, और वैसे ही हम इसको कंप्यूट करने वाले हैं, वैसे ही हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। सो वी मे राइट अवर hypothesis statement, that is there is statistical significant impact of tweets made by celebrities on common masses। This is your expected hypothesis यानी कि alternative hypothesis। इसके अपोजिट आप क्या बनाएंगे, there is no statistical significant impact of tweets made by celebs on common masses। फिर आप आगे डिफाइन कर सकते हैं केस स्टडी ऑफ दीज डेज सेलिब्रिटीज, जो भी आप लेना चाहें। जब आपने इस तरीके से दोनों हाइपोथेसिस डिफाइन कर दी हैं तो आप सबसे पहले रिसर्चर क्या काम करता है, वो अपनी एक्सपेक्टेशन के जो अपोजिट हाइपोथेसिस है यानी कि नल हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करता है।
टेस्ट कैसे करेंगे? यू विल सी द ट्वीट्स ऑफ सेलिब्रिटीज, यू विल सी हाउ कॉमन मासेस आर रिएक्टिंग टू इट, हाउ दे आर पोस्टिंग retweets or how they are replying to the tweet made by the celebs, और उसके basis पे you will try to generate evidence whether in the favor of opposite hypothesis or it could be against opposite hypothesis. तो अगर आपको रिजल्ट मिलता है अपोजिट हाइपोथेसिस के फेवर में तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को कट डाउन करना पड़ेगा, और अगर आपको एविडेंस मिलता है अपोजिट के अगेंस्ट यानी कि यही जो आपकी हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस, वो कट डाउन हो रही है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन वाली हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे. सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट डूइंग योर रिसर्च, और इसीलिए एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट एक अपोजिट हाइपोथेसिस बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी भी तरीके से अपने आप को श्योर करें कि कोई भी अपोजिट एक्सप्लेनेशन आपके एक्सपेक्टेशन के अलावा एग्जिस्ट नहीं करती है. इसका एग्जांपल मैंने आपको एक और एनेक्डोट देके भी दिया था. एक वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि दूसरी जो अपोजिट हाइपोथेसिस है वो तब तक आप उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते जब तक आप उसके अगेंस्ट एविडेंस जनरेट नहीं कर ले. और कैसे करेंगे एविडेंस जनरेट? रिसर्च करके. So the first thing that a researcher does in his or her research is to check the opposite hypothesis, that is to check the null hypothesis. Is this clear? Hello? Is it clear? Okay. Now I was talking about that there are different types of hypothesis. I was saying that you do have other types of hypothesis. मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं बताना चाह रही, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट स्टिल आई विल टेल यू द नेम ऑफ अदर हाइपोथेसिस. वन इज यू डू हैव डिवीजन ऑफ alternative hypothesis on the basis of directional hypothesis or non-directional hypothesis. इससे मतलब क्या है? I'll explain. Directional and non-directional hypothesis means, जैसे भी हम लोगों ने अपना एक एग्जाम्पल लिया था, that our expectation says that there is impact of tweets made by celebs on common masses or common people. ये आपकी alternative hypothesis है. आपने इसके against null hypothesis को बना लिया. There is no statistical significant impact of आगे tweets made by celebs on common masses. अब all नल हाइपोथेसिस जो है इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर नलिफाई कर रही है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन को कैंसिल कर रही है, खत्म कर रही है. जो चीज डेड एंड हो वहां पर डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन जहां पर ओपन एंड है, इम्पैक्ट इज देयर, वहां पर आपके कई तरह के रास्ते हो सकते हैं. तो दैट इज व्हाई alternative hypothesis opens up to different ways. One is directional, another is non-directional. मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया वो यहाँ पर रोड्स का दिया है. फॉर एग्जाम्पल you are going to a road and there is a dead end. कोई रास्ता नहीं है आगे. This is like null hypothesis. अगर आपने null hypothesis को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके आगे कोई भी एंड नहीं है. You do not have types to it, you do not have different ways to it. लेकिन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ओपन है, डेड एंड नहीं है. सो इट माइट गो इन दिस डायरेक्शन, इट माइट गो इन अनदर डायरेक्शन. यही है यहाँ पर डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल. डायरेक्शनल से मतलब ये है कि इम्पैक्ट का आपको डायरेक्शन पता हो, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है. यानी कि अगर कोई एक ट्वीट डालता है कोई सेलेब, तो लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है. जितने ज्यादा ट्वीट जिस सेलिब्रिटी के जितने डेली बेसिस पे ट्वीट आते हैं उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा आता है, जितने कम ट्वीट्स आते हैं उसका इम्पैक्ट उतना कम है. इस तरीके से जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो डायरेक्शनल है. नॉन डायरेक्शनल मतलब आपको पता नहीं है
इम्पैक्ट है दैट इज देयर बट यू डोंट नो ज्यादा का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, किस तरीके से पड़ रहा है. सो यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट कि किस तरह का इम्पैक्ट है, बट यू आर सर्टेन कि इम्पैक्ट पड़ रहा है. So if you know the direction of your hypothesis, then it is directional. If you don't know, then it is non-directional. This is one type of hypothesis. Other than this, you have so many hypotheses. One is simple. Simple नाम से समझ में आ रहा है. When you have hypothesis between one independent variable and one dependent variable, that is simple hypothesis. Another is compound. आप सभी को compound का मतलब पता है, जब बहुत सारे एलिमेंट्स टुगेदर होते हैं तो उनको कंपाउंड बोलते हैं. सो यू हैव हेयर मे बी मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पर के इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो बढ़ जाते हैं. सो यू हैव कंपाउंड हाइपोथेसिस. इसके अलावा हाइपोथेसिस होती है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? आपके हाइपोथेसिस का एक छोटा पार्ट जिसको आप स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन से चेक कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे इम्पैक्ट की ट्वीट्स के, तो हमने ट्वीट क्या लिखा है इसको स्टैटिस्टिकली नहीं देख सकते, किसने लिखा है ये भी नहीं देख सकते. हाँ, पर हम स्टैटिस्टिकली ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सेलिब्रिटी के एक ट्वीट पे 10 रीट्वीट्स होते हैं, 20 होते हैं या 100 होते हैं, और दूसरे के पे जो रीट्वीट्स हैं वो 100 से ज़्यादा होते हैं और शेयरिंग और भी ज़्यादा होती है. सो दिस इज समथिंग यू कुड कैलकुलेट. तो आपकी हाइपोथेसिस का वो हिस्सा जिसे आप स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट यू कॉल एज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. इसके अलावा होती है वर्किंग हाइपोथेसिस. वर्किंग हाइपोथेसिस मीन्स समथिंग दैट यू कैन प्रैक्टिकली चेक. आपके हाइपोथेसिस का वो हिस्सा, वो पार्ट, वो फॉर्म जिसको आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं. जैसे अभी हम लोग सेलेब्स की बात कर रहे हैं, तो किस कंडीशन में उन्होंने ट्वीट लिखा होगा, बहुत सारी जो बैकग्राउंड होगा उस ट्वीट का वो हमें नहीं पता है, क्या उसके पीछे की स्टोरी रही होगी. लेकिन जो आप चेक कर सकते हो वो ये है दैट हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू इट and what kind of tweets they have written. So this is something you could check. तो जितना working part है, जितना practically आप चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, that is working hypothesis. और other than this is logical hypothesis. Logical hypothesis means जो आप evidence के basis पे logic देते हो. अगर आपको एविडेंस ये है दैट आपने इस तरह के ट्वीट्स पहले देखे हैं जहां पर लोगों ने रिएक्ट करा है और कंट्रोवर्सी स्टेप स्टार्ट हुई हैं, सो यू हैव अ लॉजिक दैट देयर कुड बी a kind of connection, a kind of impact of tweets made by celebs. तो on the basis of evidence you are putting your logic और उसके basis पे आपने अपनी hypothesis को generate करा है. So these are different ways how you define hypothesis, but for you most important thing is not to worry about these hypotheses, because this is something when you will get into more advanced stage of research, then you might learn about it and then you would like to be more sure about what kind of hypothesis you are working with. But for now it is important for you to understand that whenever you have a research problem in your mind, you need to do brainstorming, you need to do literature review, you need to read about the previous work, you need to talk to people those who are expert in that area, so that you can frame your research question or questions. It could be singular, it could be plural, that is it could be one question, it could be two three questions that are fulfilling what you want to achieve through your research. And on the basis of these questions, you should be framing your alternative and null hypothesis. Research question के basis पे आपको null और alternative hypothesis को frame करना है. कैसे फ्रेम करेंगे? जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, मान लीजिए आप रिसर्च करना चाहते हैं कि क्या ये जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है फार्मर्स का, इसके पीछे जो पॉलिटिक्स हो रही है, इज दिस related to maybe the next election, or maybe you want to talk about is there some kind of agenda here, in some way you have a few channels which are working
to somehow polish the image of the government, कुछ भी आपके दिमाग में कोई भी एक्सपेक्टेशन है और आप उस पर रिसर्च करना चाहते हो, या आप इससे भी हट के आप फिल्म्स के बारे में कोई रिसर्च करना चाहते हो, न्यूज़पेपर के बारे में रिसर्च करना चाहते हो, तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, दैट hypothesis will be your alternative hypothesis, और उससे opposite जो hypothesis होगी that will be your null hypothesis. And why you need a null hypothesis? Because आपकी expected explanation के अलावा कोई और explanation मौजूद तो नहीं है, इस चीज को श्योर हुए बिना you cannot do your research. You need to be sure that there is no other explanation existing for your research question other than the one you are expecting. And in order to do so, you need to have a null hypothesis, you need to have a hypothesis which is opposite to your expectation, you need to test it and generate evidence on the basis of the research that you will be doing. Clear? Okay, so this is about your null and alternative hypothesis more in detail. और इसके अलावा अभी हमारा थ्योरी कंस्ट्रक्शन का भी एक पार्ट बचा है, दैट इज लॉजिक, वो हम लोग कल करेंगे, मैं हम लोग आज भी कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू बर्डन यू विद एक्स्ट्रा anything extra that somehow takes away your